متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں مصنف نے تصور اور تصدیق کی تقسیم بیان کی ہے بدیہی اور نظری کی طرف. تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور یا بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے، اور سیم تقسیم تصدیق کے اندر بھی موجود ہے. سوال یہ ہے آپ کے پاس اس تقسیم کی صحت پر، اس تقسیم کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کل کا درس ذہن عالیہ میں موجود ہے نا؟ اچھا، تو کیا دلیل ہے آپ علماء کرام کے پاس کہ یہ تقسیم مصنف نے ٹھیک کیا ہے اور یہ تقسیم صحیح ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس دلیل ہو؟ ذریعہ العباس. جو چیزیں میں معلوم ہوتی وہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جاتی بعض چیزوں کی جو کوشش سے. جی، تو آپ اس کا تجزیہ دے رہے ہیں، دلیل چاہیے. کیسے؟ اگر کہیں کہ تمام کے تمام تصورات اور تصدیقات نظری ضروری ہیں تو اس کا لازم بات ہے کہ کوئی سے لازم ہے کہ ہم کسی چیز سے بھی جاہل نہ ہوں. بدیہی مان لیتے ہیں، جب جاہل نہ ہوں سب بدیہی مان لیتے ہیں. پھر سب بدیہی مانے تو یہی لازم ہے کہ ہم سب چیزوں سے عالم کسی سے جاہل نہ ہوں. اچھا، بدیہی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس سے عالم ہے. بہت ساری بدیہات ہیں جن کا مجھے ادراک نہیں ہے، التفات چاہیے مجھے. التفات کے بعد عالم بنوں گا، جب تک التفات نہیں ہے عالم نہیں ہوں. التفات کے بعد سب کا عالم ہونا یہ لازم ہے. ہو سکتا ہے یہ دعویٰ موجود ہے علماء کا. احسنت، رحم اللہ علیہ، کوشش کی ہے نا. اور من عنده المشارکہ، لیاقت، مشکور، شاکر، عاصم، ملک صاحب، بھائی لیاقت صاحب، محمد خان، لشاری صاحب. جی، کچھ علماء کرام نے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس تقسیم کی صحت کو پروف کرنے کے لیے مختلف دعوے اور دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مصنف نے موقف یہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو تقسیم ہم نے دی ہے نظری اور بدیہی کی طرف، یہ تقسیم بدیہی تقسیم ہے. دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نظری کو. یہ تقسیم نظری نہیں ہے، یہ تقسیم بدیہی ہے. لہذا جو علماء اس مقام پر صحت کو پروف کرنے کے لیے دلیل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی یہ کوشش سود مند نہیں ہے. بدیہی ہے بھائی، بدیہی کے لیے دلیل قائم کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی. بدیہی چیز کے صحت اور سکم کا، اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا اس کے علم اور ادراک کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے. غور و فکر کی احتیاج نہیں ہوتی ہے. یہ نقطہ واضح ہو گیا ہے. تو مصنف کے دعوے کے مطابق چونکہ یہ تقسیم بدیہی ہے، لہذا بدیہی کو دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی ہے. قولہ، مصنف کا قول، بالضرورات، متن کی عبارت میں دیکھو گے وَيَقْتَسِمَانِ بالضرورات، النظری والے اقتصاد، وہ دونوں تقسیم کرتے ہیں یا تقسیم ہوتے ہیں نظری اور بدیہی کی طرف، اور یہ تقسیم بالضرورت، تقسیم ہونا
बिल जरूरत है, यानी बदीही है उनका तकसीम होना। ये लफज इशारा है मुसन्निफ का, ये लफज इला इस नुक्ते की तरफ, अन्ना हाज़िहिल किस्मता बदीहियतुन, ये तकसीम बदीही है, और जो बदीही होती है ला यहताजो इला तजश्शुमिल इस्तिदलाल बनाने की, रहमत करने की एहतियाज नहीं रहती है। अच्छा, कमा इर्तकबहु अल कौमो, जैसा कि हमारे कुछ जुमला ने, उलमाए किराम ने तकलीफ की है, जहमत की है यहाँ इस मकाम पर तकसीम की सिहत को प्रूफ करने के लिए, दलील बनाने की। अच्छा भाई, दलील की जरूरत नहीं है, तकसीम बदीही है, तो बदीही के लिए इल्तिफात तो चाहिए ना। कहता मैं अभी आपको इल्तिफात देता हूं, हर बंदा अपने विजदान की तरफ रजू करे, अपने अपने विजदान को जरा झांक के देखे, उसके जहन में जो मालूमात हैं, कुछ मालूमात ऐसे हैं जो गौर व फिक्र के बाद उनका इदराक और फहम इसको हासिल हुआ है, और कुछ मालूमात उसके जहन में, हर बंदे के जहन में ऐसे मौजूद हैं जिनका इदराक, जिनका फहम उस बंदे को गौर व फिक्र किए बगैर हासिल हो गया है। तो हर बंदा अपने विधान में देखे तो उसके जहन में जो मालूमात मौजूद हैं वो दो किस्म के हैं। तो ये विजदान की तरफ आप रुजू करेंगे तो इस इल्तिफात से आपको अपने जहन में मौजूद जो डेटा है, जो मालूमात हैं, उनके अंदर ये दोनों किस्म की मालूमात आपको मिल जाएंगी। वज़ालिक, ये जो बदाहत हमने कहा है, क्यों कहा है? लेना इज़ा रजाना इला विजदानिना, हर बंदा हम में से अपने अपने विजदान की तरफ जरा रजू करके देखे, वजदना, तो हम पाएंगे अपने मालूमात के अंदर, अपने जहन के अंदर जो मालूमात महफूज हैं उनके अंदर हम क्या पाएंगे? अन्ना मिनल तस्वुरात, जो तस्वुरात हैं हमारे जहन में, उनमें से माँ कुछ ऐसे हैं, हुआ हासिलुन लना बिला नजरन, जो गौर व फिक्र के प्रोसेस के बगैर उनका फहम, उनका इदराक, उनके माने की समझ आ जाती है। मिसाल देता है, का तस्वुर हरारत वल बरूदत, सर्दी और गर्मी, इनके मानी को समझने के लिए किसी दलील को एहतियाज कायम करने की ज़रूरत है? बगैर दलील आप इन अल्फाज के मानी को और इन हक़ाइक़ को, आप इनकी सिहत को समझते हैं। वमिनहा, और उन तस्वुरात में से कुछ तस्वुरात ऐसे भी हैं, हुआ हासिलुन लना बिल नज़रे, जिनका इदराक, जिनकी समझ, जिनके मानी का फहम हमको गौर व फिक्र के बाद हासिल होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, क्या मिसाल दिया है? का तस्वुर हकीकत मलक वल जिन, मलक का क्या माना होता है? मलक किसको कहते हैं? जिन का क्या माना होता है? किसको कहते हैं? ये सब जानते हैं, तो बदी हो गया ना। तो और मिसाल दो जो गौर व फिक्र के जरिए हासिल हो। ठीक है? तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी को समझने के लिए गौर व फिक्र की एहतियाज है, बगैर गौर व फिक्र के आप उसके मानी को नहीं समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात? बड़ा मुनाक़शा था। फिर मिसाल है, मलक क्या होता है, जिन क्या होता है, हाशिए में लिखा हुआ है, जो कि मेरे दर्स का हिस्सा नहीं है। वक्त हाँ, मफ़हूम वाज़ेह है, हकीकत वाज़ेह नहीं है। चलो, हकीकत गैर बदी हो गई, तो हमें गैर बदी की मिसाल चाहिए। ठीक है, हमें मिसाल चाहिए। अब इसका, चलो आपने दो चीज़ें कहा दी, एक मफ़हूम, एक हकीकत। आपने कहा यार मफ़हूम तो हर बंदा जानता है, हकीकत का हर बंदे को पता नहीं है, तो फिर हकीकत गैर बदी हो गई ना, गैर बदी चाहिए हमें। हम सिर्फ ये मिसाल देना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इदराक हासिल करना बदी ही नहीं है। वकज़ा, जिस तरह तस्वुर के अंदर दो हिस्से मिलेंगे, मिनल तस्दीकात, तस्दीकात के अंदर भी आपको दो हिस्से मिल जाएंगे। मा यहसुलु लना बिला नज़रिन, उनकी समझ, उनकी वकू और लावकू में से किसी एक जानिब का तअय्युन और तस्दीक हमको हासिल हो जाती है, बिला नज़रिन, गौर व फिक्र किए बगैर। दो और दो कितनी होते हैं? क्या दलील है? हाँ, दलील के बगैर आ गया ना इसका इदराक आपको। तो बहुत सारे तस्दीकात ऐसी हैं जिनका इदराक बदी है,
उनकी किसी एक जानब को मुय्यन करने के लिए दलील की एहतियाज, गौर फिक्र की एहतियाज नहीं है। का तस्दीक बेन शम्स मुशरिकतुन, शम्स तुलू करता है या चमक देता है, वलनारो मुहरिकतुन, आग जला देती है। ये वो कज़ाया हैं जो बदीही हैं, जिनका इदराक बदीही है। वह मिनहा, उन तस्दीकात में से कुछ ऐसी भी हैं मा यहसुलु लना बिल नज़रे, जिनका इदराक हमको, जिनकी सिदाकत का इल्म हमको गौर व फिक्र के बाद हासिल होता है। मिसाल उसने दिया है, कल तस्दीक बेअन अल आलिम आलम हादिसुन, ये दुनिया क्या है जी? हादस है, दुनिया हादिस है। क्या दलील है आपके पास? तो आप दलील देंगे फिर जाके नतीजे को आप तस्लीम करेंगे, बगैर दलील के इस नतीजे को, इस दावे को अक्ल कबूल नहीं करेगी। वलसाने व मौजूदुन, इस कायनात को बनाने वाला कोई है जो मौजूद है, वजूद रखता है। उस बनाने वाले के बगैर ये वजूद में नहीं आया। दलील चाहिए नहीं चाहिए? खुदा ताला के वजूद को प्रूफ करने के लिए, उसके वजूद तक इदराक हासिल करने के लिए आपको दलील चाहिए। मालूल बगैर इल्लत के वजूद में नहीं आता, और मालूल जो है ये वाजिबुल वजूद नहीं, मुमकिनुल वजूद है। मुमकिनुल वजूद वजूद में आने के लिए इल्लत का मोहताज होता है। वहाँ कज़ा जो उलमा इल्म कलाम ने दलाल बयान किए हैं, और आप उलमा हमसे बेहतर जानते हैं। इन मिसालों से क्या साबित हो गया? मुसन्निफ ने सिर्फ इल्तिफात दिया है। इल्तिफात करो कहाँ? वो डेटा जो आपके जहन में मौजूद है, वो मालूमात जो आपकी मेमोरी में सेव हैं, तो आपको उनमें से कुछ मालूमात ऐसी मिलेंगी जिनका इदराक, जिनका फ़हम आपको गौर व फिक्र के बाद हासिल हुआ है। कुछ ऐसी हैं जिनका इदराक आपको गौर व फिक्र किए बगैर डायरेक्टली हासिल हो गया है। तो आपका विजदान ही काफ़ी है इस बात को या इस तकसीम को सही मानने के लिए कि कुछ तसव्वुरात बदीही हैं, कुछ नज़री हैं, कुछ तस्दीकात बदीही हैं, कुछ तस्दीकात नज़री हैं। तो तकसीम की सिहत को प्रूफ करने के लिए अलग से किसी दलील की एहतियाज नहीं है, क्योंकि दलील की एहतियाज होती है किसी नज़री चीज़ को समझने के लिए, और ये तकसीम ही बदीही है। बदीही और नज़री की तरफ जो तकसीम है, ये तकसीम ही बदीही है। आगे बढ़ जाएं, इजाज़त है उलमाए किराम की? अच्छा, मुसन्निफ ने बदीही और नज़री के दरमियान फारिक करार दिया है। किसको? गौर व फिक्र को। जिस चीज का इल्म गौर व फिक्र के जरिए हासिल हो वो नजरिया है, जिसका इदराक, जिसका फहम गौर व फिक्र के बगैर हासिल हो वो बदी है। फारिक किसको करार दिया है? गौर व फिक्र को। अब जरूरत है इस बात की, फिक्र की डेफिनेशन क्या है? फिक्र किसे कहते हैं? माना कि संदल है दर्द सर का इलाज, मगर संदल को रगड़ना भी तो दर्द सर है। भाई माना कि गौर व फिक्र से जो चीज हासिल हो वो नजरिया है, लेकिन ये भी तो कोई बताए ना गौर व फिक्र क्या होती है। ध्यान नहीं दिया उलमाए के। तो गौर व फिक्र की क्या डेफिनेशन है? आप हैरान हो गए यार। अल्लाह ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक बनाया है, किस लिए बनाया है? इसलिए कि इंसान के पास गौर व फिक्र की सलाहियत है, अक्ल है। यही वजह है ना। अच्छा, तो आपके पास ये तुरा इम्तियाज है, आपकी ये वजह शरफ है, जिस बुनियाद पे आप अशरफुल खलाइक हैं। और वो क्या है? आपके पास खूबी है, क्वालिटी है। क्या? गौर व फिक्र की है या नहीं है? तो जिसके पास है मुझे वो बताए फिक्र की डेफिनेशन क्या है। मुश्किल में पड़ गए ना, सवाल नहीं समझा, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया यार। मालूमात से मजूलात की तरफ जाना, मालूमात से मजूलात की तरफ जाना, गौर व फिक्र के जरिए। ये गौर व फिक्र की तारीफ है। गौर व फिक्र की ये पक्की बात है। अच्छा, किसान लोग गौर व फिक्र करते हैं? किसान लोग, रेडी वाले, पब्लिक गौर व फिक्र करते हैं?
نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے یہ طریقہ نہیں پتہ نہیں ہے لیکن خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے ہے, فطرت میں ہے نا. جی جب فطرت میں ہے تو ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے نا. فکر کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, آسان. ملک صاحب آپ کچھ فرمائیں گے. غور و فکر کس سے کہتے ہیں؟ فکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نفس کا متوجہ ہونا نفس کا کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا فکر ہے. ساجد آپ کسی بھی صورت کے کسی بھی چیز کی صورت ذہن میں آ جانا. آ جائے, یہ فکر ہے یا علم ہے؟ فکر اور علم ایک ہی چیز ہے, الگ نہیں ہے. عرفان کسی چیز پر یعنی ضرورت اس پر غور کرنا تاکہ اس تک پہنچ جائے, یعنی کسی چیز پہ آپ غور کریں گے, لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غور ہے. یہ غور ہوتی کیا ہے؟ یہی فکر ہے. انسان جب فکر کرتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے, غور فکر ہوتی ہے, فکر غور ہوتی ہے. حسن معلومات سے مجہولات کی طرف منتقل ہونا, یہ منتقل ہونا فکر ہے. اب سے معلومات کو اس طرح آپ کے ذہن میں معلومات ہیں اس کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ مجہول تک پہنچا دے. معلومات کو ترتیب دینا, اس طرح ترتیب دینا اس طرح ترتیب دینا کہ وہ مجہول تک کہ مجہول تک انسان پہنچ جائے. پہنچ سکے. اب سب زندگی میں کبھی فکر کیا ہے؟ کیا ہوگا تو پتہ ہوگا, کیونکہ انسان جو کام انجام دے چکا اس کو پتہ ہوتا ہے نا. شاکر عقل کی حرکت کرنا, معلوم سے مجھول تک. عقل کا حرکت کرنا جی, کہاں سے؟ معلوم سے. معلوم سے جی, مجہول کی طرف. تو پھر تو عقل بہت حرکتی ہوئی نا. ہاں جناب سادی سے معلومات سے مجہول تک پہنچنا. جناب اچھا, آپ لوگوں کی صرف توجہ کے لیے خان جی ارشاد فرمائیے. حرکت العقل کو کہتے ہیں مطلقاً, چاہے معلومات کے درمیانہ ہو یا مجہول سے معلوم ہو یا معلوم سے مجہول ہو, مطلقاً قصد اور حرکت عقل کو کہتے ہیں. عقل کا حرکت کرنا من شیء الی شیء, ٹھیک, جی یہ فکر ہے. جی جی لشواری صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ یعنی ایسی یعنی عقل ایسی قوت ہے جس قوت کے حرکت کے نتیجے میں یعنی عقل مجہولات سے یعنی معلومات سے مجہولات تک, معلومات سے مجہولات کی طرف. یہ جملہ بہت سارے لوگوں نے رپیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. کل ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگوں نے لفظ یاد کیے ہوئے ہیں فکر کی تعریف کے, پتہ نہیں ہے فکر کسے کہتے ہیں. قبلہ ناظم صاحب خدا ان کو صحت و سلام دیتے, وہ ایک لطیفہ سنا دیتے, آپ کرمو یوں بچڑا. وہ بیچارہ ایران سے واپس گیا تو آپ بیمار تھا تو پانی مانگتا تھا. وہ بیچارے دیہات کے لوگ تھے, اس کی جو فیملی تھی, تو وہ تو پانی بولتے تھے نا. یہ آپ کہتا تھا, بیچارہ بیمار تھا تو کسی کو سمجھ نہ آئی کہ اس کو پانی دے دیں. اب آپ کرمو لفظ یاد کیے ہیں بھائی, لیکن اس کا مصداق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک. منطق انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے, اور فطرت کو سمجھنے کے لیے صرف التفات کافی ہوتا ہے. جو انسان فطرت کو براستہ الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دور چلا جائے گا. الفاظ کے ذریعے فطرت نہیں سمجھی جاتی, احساس کے ذریعے فطرت سمجھی جاتی ہے. میں آپ کو احساس کے راستے سے جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ, جیسے کہتے ہیں نا, گزشتہ سے پیوستہ, آپ کی زندگی کا, آپ کے روزمرہ کا ایک چیپٹر ہے, وہ دوبارہ صرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں کسی نے قرآن مجید جوڑ کے ساتھ پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. اچھا, جوڑ کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کے پاس حروف تہجی پہلے سٹاک موجود ہے, ٹھیک. جوڑ کرنے والے کے پاس حروف تہجی تو موجود ہوتے ہیں کہ وہ بھی ابھی شروع کر رہا ہے. جوڑ کرنے سے پہلے حروف تہجی
मौजूद होते हैं ना, क्या करता है हरूफ तहजी को जोड़ के लफ्ज कंप्लीट करता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो जोड़ करने वाला क्या करता है हरूफ तहजी को उसकी अस्वात के मुताबिक, तोई की आवाज़, जोई की आवाज़, रे की आवाज़, अस्वात के मुताबिक उनको जोड़ता है, लफ्ज बन जाता है। अच्छा, तख्ती लिखते हैं? नहीं लिखी है? लिखी है तख्ती। तो इब्तिदा में बच्चे को तख्ती लिखाना कैसे सिखाते हैं? हरूफ को आपने हरफ को हरफ के साथ जोड़ना है, ठीक है ना, और जोड़ना है मुनासिब तरतीब के साथ जोड़ना है, लियाकत बन जाएगा। पहले लाम, फिर ये, फिर अलिफ, तरतीब बदल दो। अल्फाज तो जोड़े हैं मगर मुनासिब तरतीब के साथ नहीं जोड़े हैं, प्योर लफ्ज बनेगा, लियाकत नहीं बनेगा। अलामा साहब, जरी साहब, ऐसे है या नहीं है? तो जरी लिखने के लिए पहले मैं रा लिख दूं, फिर जीम लिख दूं, फिर या लिख दूं, जरी बन जाएगा। हरूफ तो वही है सारे, लेकिन मैंने मुनासिब तरतीब के साथ नहीं जोड़ा है। अच्छा, जिस मिस्त्री ने यह मकान बनाया है मुनासिब तरतीब के साथ ईंटें जोड़ी हैं, मुनासिब तरतीब के साथ मटेरियल को जोड़ा है, जोड़ने के नतीजे में एक मुफीद शय वजूद में आ गई है। ठीक है, जिसने ये मोबाइल बनाया है मटेरियल उसके पास मौजूद है, पुर्जे आज़ा इसके, वो जो पुर्जे हैं वो मटेरियल है, उस मटेरियल को एक मुनासिब तरतीब के साथ उसने जोड़ा है। जोड़ने के बाद एक मुफीद चीज़ वजूद में, अगर उन पुर्जों को मुनासिब तरतीब के साथ ना जोड़े, आगे पीछे करके जोड़ दे, जुड़ जाएगा मगर कोई मुफीद चीज़ वजूद में नहीं आएगी। मकान की मिसाल ज़हन में आ गई, ईंटों को मुनासिब तरतीब से जोड़ा गया, एक मुफीद चीज़ वजूद में आ गई। मोबाइल की मिसाल ज़हन में आ गई। अच्छा, हरूफ तहजी कैसे लिखे जाते हैं, एक मुकम्मल लफ्ज़ कैसे बनता है? जोड़ के साथ जब पढ़ते हैं बच्चे तो उस वक़्त अल्फाज की असवात को सौत के साथ जोड़ते हैं तो एक लफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है। ज़हन में आ रही हैं मिसालें? नहीं आ रही हैं? कपड़े का पीस लेके दर्जी के पास जाते हो, पहले वो इसके पुर्जे काटता है, ठीक, काटने के बाद उनको मुनासिब तरतीब से जोड़ता है। सलवार वाला पीस कमीज के साथ जोड़ दे, मुनासिब चीज़ मुफीद चीज़ वजूद में, पुर्जे क्या करता है मुनासिब तरतीब के साथ उनको, 3-4 मिसालें ज़हन में आ गई ना। अब पूरी आलम की सारे मिसालें ज़हन में रखो, तारीफ टोटल करने लगा हूँ। आपके पास जो मटेरियल रेडी पड़ा हुआ है, आपके हाथ में अवेलेबल जो मटेरियल है, उस जाहिज मटेरियल, अरबी में जाहिज बोलते हैं ना, जो रेडी है आपके पास, तैयार शुदा पड़ा हुआ है, ये जो तैयार शुदा मटेरियल आपकी दस्तरस में आपके पास मौजूद है, इस मटेरियल को एक ऐसी मुनासिब तरतीब से जोड़ना कि कोई मुफीद चीज जोड़ने के नतीजे में वजूद में आ जाए, मुनासिब तरतीब से जोड़ने को फिक्र कहते हैं। लफ्ज नहीं समझा रहा हूं, चीज समझा रहा हूं यार। फिक्र किसे कहते हैं? जो मटेरियल आपकी दस्तरस में दस्तयाब है, आपको वो रेडी मटेरियल मवाद जो आपके पास मुयस्सर है, दस्तयाब है, इस जाहिज मटेरियल को क्या करना है तुमने? मुनासिब तरतीब के साथ जोड़ना है। ऐसी मुनासिब तरतीब के साथ जोड़ना है कि कोई मुफीद चीज इस तरतीब, मुनासिब तरतीब की वजह से वो वजूद में, कमरा इन ईंटों के दरमियान इनको मुनासिब तरतीब से जोड़ने की वजह से वजूद में आया है। ध्यान नहीं दे रहे हैं उलमाए किराम यार, खून लगता है। मुनासिब तरतीब से इस मटेरियल को मिस्त्री ने जोड़ा है, मुनासिब तरतीब से जोड़ने के नतीजे में एक मुफीद चीज, उसका नाम कमरा है, ये वजूद में आ गया है। वाज़ेह हो रही है बात? इंसान के जहन में ये जो मालूमात बदीहिया होती हैं, ये मटेरियल है जो उसको अवेलेबल है। जो बदीहियात होती है ना,
वो गौर फिक्र के जरिए हासिल करते हो? नहीं, वो तुम्हारी फितरत में उनका इल्म मौजूद होता है। इल्तिफात करते हो, बदीहियात का इल्म तुम्हारे जहन में इदराक में हासिल हो जाता है। तो ये जो बदीहियात का इल्म है, जो गौर फिक्र के बगैर जिनके इदराक को तुम हासिल करते हो, ये तुम्हारे पास क्या है? एक जाहिज मटेरियल है, एक अवेलेबल मटेरियल तुम्हारे पास मौजूद है। इस जाहिज और मुतवफ्फिर या मुयस्सर मटेरियल को अब मुफक्किर करता क्या है? इनके मटेरियल के दरमियान लाजिम और मलजूम के रिश्ते की बुनियाद पे। किस बुनियाद पे? लाजिम मलजूम। ईंट को ईंट के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में कोई सीमेंट वगैरह इस्तेमाल किया है मिस्री ने या नहीं किया है? वो जो एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में उसने मिसाला इस्तेमाल किया है ना, तो एक माने को दूसरे माने के साथ जोड़ने के लिए दरमियान में जो मिसाला होता है ना, उसको लजूम कहते हैं। लजूम के रिश्ते की बुनियाद पे तुम्हारे पास ये जो बदीहियात का इल्म है, ये है एक जाहिज मैटर। इस जाहिज मैटर को तुमने एक दूसरे के साथ जोड़ना है लजूम के रिश्ते की बुनियाद पे, ताकि इस मुनासिब तरतीब के साथ जब तुम जोड़ोगे तो इनके जोड़ने के नतीजे में आपको एक मजहूल चीज का इदराक और इल्म हासिल हो जाएगा। ये जो मजहूल चीज का इदराक और इल्म हासिल हुआ है, आपको कैसे हासिल हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए अक्ल ने उसके पास जो मटेरियल पहले से मौजूद था उसके अंदर एक मुनासिब तरतीब से उनको जोड़ा है। ये जो मुनासिब तरतीब से उसने जोड़ा है, ये फिक्र है। जोड़ने के नतीजे में जो मजहूल चीज का इंकिशाफ उसे हुआ है, ये नतीजा है। इससे ज्यादा आसान फिर से आसानी से भी कर सकते हैं। फिक्र की तारीफ, फिक्र की डेफिनेशन, फिक्र की हकीकत क्या है, ये फिक्र है। फिक्र तुम्हारी फितरत के अंदर मौजूद है, मुतवज्जे नहीं है आप। मिस्री भी मुफक्किर है अपने काम का, दर्जी भी मुफक्किर है अपने काम का, सहजान मुफक्किर है अपने काम का। प्रोडक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? प्रोडक्शन कैसे दिया है? मटेरियल के अंदर एक मुनासिब तरतीब देने से ये मोबाइल वजूद में आया है। ठीक है? फिक्र सरमाया है तुम्हारा। आप फिक्र करेंगे किसी शय के वजूद के अंदर, ठीक है? यार ईंटों का एक ट्रक कल्टी हुआ पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसके अंदर कोई मुनासिब तरतीब नहीं होती, ठीक है? मटेरियल है मगर खाली मिनल तरतीबिन मुनासिबिन है, ठीक है जी रजरी साहब? तो आप उस मटेरियल को देखकर उससे कमरे की तस्वीर जहन में आएगी, मस्जिद की तस्वीर जहन में आएगी, किसी बिल्डिंग की तस्वीर जहन में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि वो तस्वीर वो उस तरतीब के नतीजे में वजूद में आती है, अभी तरतीब से खाली है वो, ठीक है? अभी वो तरतीब से खाली है। अच्छा, तो मटेरियल का एक ट्रक कल्टी पड़ा है और एक ये दीवार जो है जिसको मिस्री जो है वो मुनासिब तरतीब के साथ मटेरियल को जोड़ने के बाद वजूद दे गया है। तो इस कमरे की ईंटों में और मटेरियल की जो ईंटें बाहर पड़ी हुई हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? इस मटेरियल के अंदर मुनासिब तरतीब आ चुकी है और वो मुनासिब तरतीब से खाली है। तय हो गई बात? जहां मुनासिब तरतीब हो वहां उसके पीछे कोई मुफक्किर, कोई अक्ल मुदब्बिर होती है जिसने ये मुनासिब तरतीब दी है। ये मुनासिब तरतीब खुद ब खुद आ जाती है। जहां भी मुनासिब तरतीब होगी वो मुनासिब तरतीब दलील बनेगी। किस बात की? कि इसके पीछे कोई, इसके बनाने के पीछे कोई अक्ल मुदब्बिर है। अच्छा, और जो मटेरियल कल्टी होकर पड़ा है, मुनासिब तरतीब से खाली है, उसके अंदर चूंकि तरतीब नहीं है, तो वो अपने पीछे किसी अक्ल मुदब्बिर के मौजूद होने के लिए वो दलील या काशिफ, ठीक बात समझ में आ गया ना? अब आओ अपने वजूद से लेकर कायनात की हर मखलूक के वजूद में आके जरा गौर व फिक्र करो।
अल्लाह ने कायनात की हर मखलूक को एक ख़ास मुनासिब तरतीब के साथ पैदा किया है। दर्द की गोली खाओ, पाँव पे असर नहीं करती, वहाँ जाके असर करती है जहाँ दर्द है। क्यों? इसलिए कि इस जिस्म के अंदर एक मुनासिब तरतीब के साथ एक निज़ाम मौजूद है। उस निज़ाम की वजह से गोली वहीं जाके असर करेगी जहाँ इंसान को, अगर ये मुनासिब निज़ाम अंदर बॉडी के अंदर ना हो, दर्द पाँव में हो, गोली जाके सर में असर करे। है? ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उस निज़ाम की वजह से गोली वहीं जाके असर करती है जहाँ इंसान को जिस्म में, ठीक है। तो ये निज़ाम और तरतीब दलील है कि कोई पीछे अक्ल मुदब्बिर मौजूद। अगर ये कायनात का निज़ाम तरतीब से खाली है, कायनात की ये मखलूक ये अगर उस कल्टी शुदा ट्रक के मटेरियल की तरह बगैर तरतीब के है तो फिर ऑटोमेटिक है। अगर इसके पीछे इसके अंदर कोई निज़ाम और तरतीब मौजूद है तो फिर मानना पड़ेगा इस कायनात को बनाने वाला कोई अक्ल मुदब्बिर मौजूद है, वो इस कायनात का सानी है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो कुरान मजीद के अंदर बार बार जो है वो फ़िक्र और तदब्बुर का जो हुक्म आया है उसका रब्त वाज़ेह हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये समझ आ गई कि फ़िक्र क्या चीज़ होती है, ठीक है ना? तो फ़िक्र मटेरियल आपके पास मौजूद है, आपने सिर्फ उसके अंदर क्या करना है, एक मुनासिब तरतीब देनी है। मुनासिब तरतीब के नतीजे में आपको एक कार आमद चीज़ मिलेगी। लेकिन हर बंदे का मटेरियल मुख्तलिफ है। मिस्त्री का मटेरियल ये ईंट है, सीमेंट है। इंजीनियर का मटेरियल ये पुर्जे हैं जिसके साथ उसने जोड़ के ये डिवाइस बनाई है। ठीक हो गई बात? दर्जी का मटेरियल कपड़ा है जिसको जोड़ के वो एक सूट तैयार करता है। तो हर किस्म के कारीगर के पास यानी हर किस्म का मुफक्किर बोलो, हर एक मुफक्किर के पास अपने शोबे के मुताबिक अलग अलग पहले मटेरियल तैयार होता है। उस मटेरियल के अंदर फिर वो मुनासिब तरतीब देके एक प्रोडक्शन ले आता है, मार्केट के अंदर एक मुफीद चीज़ को इजाद करता है। समझ आ गई ना बात? उलमाए किराम का जो मटेरियल है वो क्या है? ये मालूमात बदहिया। मालूमात बदहिया क्या है? ये उलमाए किराम का मटेरियल है। अच्छा, साइंसदान ने मटेरियल जोड़ा और ये मोबाइल वजूद में आ गया है। ठीक हो गई बात? तो साइंसदान ने क्या किया है, इस मोबाइल को इजाद किया है। मटेरियल जोड़ा, जोड़ने के नतीजे में मोबाइल वजूद में आ गया। मिस्त्री ने मटेरियल को जोड़ा, कमरा वजूद में आ गया। तो कमरे के वजूद को किसने इजाद किया है? मिस्त्री ने। ठीक हो गई बात? आओ, मुज्तहिद भी तो मटेरियल के अंदर खास तरतीब के साथ उनको जोड़ता है हुक्म शरी तक पहुंचने के लिए। तो जब फरमाओ ना, मुज्तहिद क्या करता है? वो भी तो आपने इसी मटेरियल के अंदर, वो जो दलील है मटेरियल है ना, उसके अंदर क्या करता है? मुनासिब तरतीब से उनको जोड़ता है, सुगरा कुबरा को मुनासिब तरतीब के साथ जोड़ता है ताकि क्या करे वो हुक्म शरी तक। तो मटेरियल को जोड़ने से तो चीज़ वजूद में आ जाती है। जब वजूद में आ जाती है तो मटेरियल को जोड़ने वाला क्या कहेगा? इसका मुजिद, और ये उसकी इजाद। हुक्म शरी का मुज्तहिद मुजिद होता है। अगर ये पिछली बात समझ आ गई है तो फिर मैं अगली बात में चला गया हूँ। फिक्र की बहस से अब मैं रुखसत हो चुका हूँ। फिक्र क्या होती है ये समझा के आगे जा चुका हूँ मैं। भाई मुज्तहिद भी तो जब इस्तेमाल करता है तो मटेरियल जोड़ता है नहीं जोड़ता है? क्यों जोड़ता है? अच्छा, तो फिर हुक्म शरी क्या हो गया? तरतीब कर देने वाले का, मटेरियल जोड़ने वाले की इजाद हो गई। तो हुक्म शरी मुज्तहिद की इजाद हो गई। इस लिहाज से इजाद होगी। इजाद है, यानी इजाद है। यानी आप इत्तेफाक नहीं रखते हो इलाका से, और कोई थोड़ा यार मुझे जो है वो सपोर्ट किया करो। जो मालूमात होती हैं वो बदी नहीं होती। किसके पास? मुज्तहिद के पास बदी नहीं है। नजरी के साथ नजरी को किशफ किया है। नजरी जो होता है वो मटेरियल जायज़ नहीं है।
قرآن اور حدیث مٹیریل ہے، نظریہ بدیہی ہے؟ اگر بدیہی ہے تو پھر اس کے مطلب اس نے جوڑا ہے، جب جوڑا ہے تو حکم شرعی ایجاد ہے، اگر بدیہی نہیں ہے تو نظریہ ہے، نظری کو نظری کے ذریعے کیسے کشف کرے گا؟ حکم ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ ظاہر ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جوڑ کے ترتیب کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، ایجاد نہیں کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ لشاری صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ مجتہد حکم شرعی کو ایجاد نہیں کرتا بلکہ مخفی ہوتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اور کوئی من عنده عالم الشارکہ، کنفیوز ہو گئے ہیں نا؟ شاکر کدھر ہو یار آج؟ میرے خیال میں کسی اور محفل میں چلے گئے، یہاں ہے تو پھر بتاؤ مجتہد حکم شرعی کا موجد ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے کہ جب کوئی مستری کمرہ بناتا ہے تو ہم کوئی بھی پوچھنے والا کہتے ہیں یار کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں مستری نے بنایا۔ تو جو توضیح المسائل کے اندر فتاوی موجود ہیں ان کا موجد سستانی صاحب ہیں۔ اس لحاظ سے ویسے اس طرح نہیں ہے کہ ایجاد ہی سستانی صاحب نے کی ہے، شارع نے اصل ایجاد کی ہے، اس نے ترتیب دی ہے سستانی صاحب، ترتیب حکم شرعی کو نہیں دی ہے، اس کو مرتب ترتیب اس دلیل کو دی ہے جس کے نتیجے میں حکم شرعی آیا ہے۔ ترتیب اور چیز ہے، ترتیب کا نتیجہ اور چیز ہے۔ ترتیب مٹیریل کے اندر دی گئی ہے، کمرہ تو اس ترتیب کا نتیجہ ہے۔ جو نتیجے میں اور ترتیب میں یہ دو سٹیپ ہیں علیحدہ علیحدہ۔ اچھا، مٹیریل شرعی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ موجد ہوگا یا اس کا نہیں ہوگا؟ موجد ہے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ آپ موجد تک پہنچ گئے ہیں۔ حکم شرعی کا موجد ہے اور نہ ہی یہ باقی جو سائنسدان یہ موجود ہے، بلکہ دونوں نے انکشاف کیا اور کیا نام ہے چھپی ہوئی چیز اس کو باہر لے کے پہلے سے موجود تھی وہ چیز، پہلے جو کیا مرتب نہیں تھی انہوں نے مرتب کر کے اس کو سامنے لے کے آئے ہیں۔ یعنی سائنسدان بھی موجد نہیں ہے، اور جو سائنسدان کو موجد کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ انکشاف کرنے والا سائنسدان نے موبائل کے وجود کو انکشاف کیا ہے، ایجاد نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ کی بات کا نتیجہ یہی ہو نا، مجتہد کی طرح اس نے مٹیریل کو مرتب کیا، مرتب کرنے کے بعد اس کے وجود کو اس نے انکشاف کیا ہے، ایجاد نہیں کیا ہے۔ بقول جری صاحب کے، میں صرف ان کی بات کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ ایک دوسرے کی فکر سب پر واضح ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ جو مجتہد ہے پاس مٹیریل ہے وہ مجتہد کی ذاتی نہیں ہے، وہ کسی سے لے کے ائمہ سے مٹیریل لی ہے اور وہ بتا دیا۔ سائنسدان نے بھی یہ مٹیریل اپنی والدہ سے نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا اس نے یہ مٹیریل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہیں، سائنسدان نے ان چیزوں کو ڈھال کے اس کا مٹیریل بنا لیا۔ تو اینٹ جو ہے مٹی سے لی گئی ہے، مٹی اللہ نے خلق کی ہے، تو اس سے آپ نے جو ہے وہ کمرے کا مٹیریل تیار کر لیا۔ اچھا جی، آؤ جواب سنو۔ جڑی بوٹیاں ان کے اندر خواص موجود ہیں، یہ جڑی بوٹی فلاں بیماری سے شفا دے گی، یہ فلاں سے شفا دے گی، اس کا یہ ذائقہ ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کوئی مثال ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میڈیکل کیا کرتا ہے؟ جڑی بوٹیوں پر ریسرچ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میڈیکل کیا کرتا ہے؟ جڑی بوٹی کے اوپر ریسرچ دیتا ہے، اس کے پاس ریسرچ کے میڈیکل کے اندر قوانین ہیں، قواعد ہیں، ان ادلہ کو، ان مٹیریل کو جوڑ کے کشف کرتا ہے کہ یہ بوٹی اس کے اندر فلاں بیماری سے شفا دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ادلہ کے بعد بوٹی کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو وہ کشف کرتا ہے۔ کشف کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ مریضوں پر اس کا تجربہ کرتا ہے، تجربہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس دلیل کو جوڑ کے وہ نتیجہ ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کشف کرنے کے لیے، نتیجہ کشف کرنے سے مراد یہ ہے بوٹی کے اندر، اس پودے کے اندر جو خاصیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو کشف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟
जो मेडिकली कानून के मुताबिक अदिल्ला है, जो मटेरियल है उसको पहले जोड़ता है। बात ज़हन में आ रही है? अच्छा, तो जड़ी बूटी के अंदर बीमारी से शफा देने की सलाहियत और ये खूबी उसके अंदर मौजूद है। मेडिकल के बोर्ड ने क्या किया है, शोबे ने क्या किया है, अदिल्ला को, मटेरियल को, उस नतीजे को, उसके अंदर छुपी हुई खूबी को समझने के लिए, कश्फ करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ये मटेरियल तरतीब दी है। तरतीब देने के बाद मटेरियल ने उसको एक नतीजा दिया कि इसके अंदर फलां खूबी है। अब ये जो खूबी इस मटेरियल को जोड़ने के नतीजे में या इस दलील के नतीजे में उसको मिली है, इसको फिर मजीद तसल्ली के लिए मरीजों पर वो अप्लाई करता है कि हमें दलील ने ठीक नतीजा दिया है या ठीक नतीजा। भाई क्यों दोबारा तजर्बे की जरूरत है? इसलिए कि वो जो शफा है वो है मानवी चीज, वो मोबाइल की तरह उसका मादी जिस्म नहीं है। हुक्म शरी मानवी चीज है, कोई मादी वजूद नहीं है। मादी वजूद की सूरत में मटेरियल को जोड़ने वाला मूजिद कहलाता है, और मानवी वजूद की सूरत में मटेरियल को जोड़ने वाला उसका काशिफ कहलाता है। मूजिद मुजतहिद इस्तिंबात करता है, इजाद। इस्तिंबात समझते हो? हैं? इस्तिंबात, घर में आप देहात में जाएंगे, खवातीन जो हैं वो दूध के अंदर जो है वो मधानी चलाती हैं, दही के अंदर, देखा है ना? दही के अंदर क्या करती हैं वो? मधानी चलाती हैं, फिर उससे क्या निकाल लेती हैं? मक्खन निकालती हैं। ये जो खवातीन ने उस दही के अंदर मधानी चलाई है, इस मधानी चलाने को चला के उससे, अब ये मक्खन जो है मधानी चलाने से पहले उसी के अंदर मख्फी था, ये जहर था यार, दूध के अंदर छुपा हुआ है। तो उसने मधानी चला के मक्खन इजाद नहीं किया है, मक्खन उससे छुपा हुआ था, कशफ किया है। कुरान और हदीस के अंदर हुक्म शरी छुपा हुआ होता है। उसूली कवायद व कवानीन को तत्बीक देकर मुजतहिद कशफ करता है, मक्खन बाहर निकालता है। अस्सलाम वालेकुम।